recording also. Okay. So today's reading task is studying the animal minds. Can animals think? You've read the topic now, heading. So you come to know that this is something to do with animal minds and how animals think. Let's go to the questions straight away. Okay. Questions is first questions are true, false, not given. Okay. True, false, not given. You know the base of true, false, not given. True if the statement is true, false if it is false. Just wait. Okay. So firstly, Alex has grasped quite a lot of vocabulary. ठीक है. अब ये देखो कि जो Alex has grabbed lot of vocabulary, इसको अंदर देखो, इसको कहाँ मिल रहा है इसका जो है keywords. Vocabulary देखो, मैं first page खोलती हूँ, first 2 paragraphs. Okay. Just give me 1 minute. In the paragraph. Okay, sorry for that. Alex has grabbed lot of vocabulary. इसका मेरे को बताओ यहाँ पे. मैम फर्स्ट ना साउंड की बात कर रहे हैं मैम फर्स्ट पैराग्राफ में. Yeah, that might be not given, I think, because फर्स्ट पैराग्राफ पे में तो नहीं है मैम. फर्स्ट पैराग्राफ पे नहीं है. vocabulary का कीवर्ड है फर्स्ट पैराग्राफ में. नो. मैम साउंड की बात कर रहे See in the second paragraph, can you find just by quick look, do you find the word vocabulary or words or anything like that? No. See in paragraph C. Gaps of grammar and symbol. Anything to do with vocabulary or words? No. No, ma'am. No, ma'am. Fourth. In the paragraph. E paragraph में देखो. Yeah. मैं सिंबल 100 English words लिखा है. मैम ये रहा ई में थर्ड लास्ट 3 लाइन. Third line. 100. 100 almost 100 English words. तो 100 English words को आप a lot of बोलोगे? Yes. यस मैम. 100. 100 English words उसने सीखे हैं. Can you say it's a lot of vocabulary? no, नो मैम. हाँ? नो मैम. नहीं है ना? तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? false, नो. हाँ? Not given. false. Not given, ma'am. नहीं, क्यों? सीधा सीधा बताया हुआ है उसके बारे में. So what should be the answer? फॉल्स. False. हाँ, false है ना? False है आंसर. False. ठीक है? Yes. हाँ. Just give me 1 minute.
Ma'am, I would like to ask one question here. Yes. Yeah, the sequence will not follow here. Means, if there are six questions, they will not be in sequence. Means one after another. No, it is not necessary that always a sequence is followed. Okay. Okay, okay. हाँ. मैम हाँ जी. then अच्छा, not आपको में ये कितने false लग रहा आएगा है कि not given लग रहा है? Let me ask you once again. This would be false actually. Okay. false False. Yeah. फॉल्स होना चाहिए ना मैम नॉट गिवन ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ not given ਲੱਗੀ ਆ हाँ. See, where is it written in E paragraph? 100 words. मैम including sounds for various foods और वो है vocab की तो ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ A lot of vocabulary के बारे में कुछ बताया नहीं है. एक No. बहुत lot of vocabulary है. So it should be not given. Okay. ओके कि मैं At the But it beginning. is giving in contrast, no, that 100 words ज्यादा नहीं है, तो contrast Yeah. नहीं दे रखा है, So तो फिर see, there false they होना will. चाहिए. This is a little bit challenging, but 100 words का लिखा है पर lot of भी नहीं है और ये कम भी नहीं कह सकते हो. Words के बारे में, vocabulary के बारे में as such नहीं है. So this is a bit confusing, but answer इसका huh? Ma'am, it is confusing. Yes, it is confusing, but the answer given in the passage is not given. तो उसका यही किया है Grasped meaning. हाँ? Grasped meaning. Grasp means समझ आ गई है उसको. Grasping. Okay. So learned a lot of vocabulary and grasping is it's the same, but quite a lot of vocabulary के बारे में बात नहीं करी हुई, पर 100 words की बात करी हुई है. I personally would say it is false because उसके बारे में context में लिखा हुआ है कि 100 है and 100 is not quite a lot, so it would be false. Okay. Okay. can we go by like it is written vocal training so it is more like Hello, ma'am. Yes. I got the answer false, but from the first line, first paragraph, I got the answer. The last line, I thought he learned to communicate. No. Alex into her lab to teach him to reproduce the sounds of the English language. Okay. And what I'm thinking, him to reproduce the sounds of the English language. Yes. Only sounds he can, but didn't learn the word. That's the way I got the answer false. Is it Yeah. correct? that's what it's more about pronunciation not about the learning of lot of words But actually, later on, he has quite well written that he learned 100 words. Oh, that one I didn't. See in the E paragraph. See, Alex learned how to use his vocal tract to imitate almost 100 English words, including a sound. Okay, he could imitate, but he couldn't learn. yes ma'am. Imitate. Imitate, yes. So in that context, the answer is not given. Okay, Yes. imitation and learning is different. Yes. ठीक है? So ये बात Imitation means copying, ma'am. Yes. yeah, that is copying. He could copy 100 words. He could speak out 100 words, but whether he learned or not learned them, that is not given. Okay? So I'm really sorry कि इसका मैंने अपना अच्छे से homework नहीं करा हुआ था, but I hope it is clear now. Yeah. Yeah. डेफिनेटली Okay. So answer is in first, which paragraph now? First. E paragraph. First. First से भी देख लो, पर E में भी he could copy. He learned how to use his vocal cords to imitate almost 100 English words. Can you see this file? Yeah, ma'am. Yeah. So, imitate almost 100 English words, including the sounds. He could imitate. Okay. Okay. He could speak them out, but whether he learned them or not is definitely not given. Yes. Okay. Okay. If anybody would speak that word, he could imitate it. Okay. At the beginning of study, Alex felt frightened in the presence of humans. At the beginning of study. Now we'll come to passages one by one and see where it is given at the beginning of study. So A में है कुछ beginning of study के बारे में? स्टडी की बात मैम आई थिंक सी में करी है वहां उसने स्टार्ट किया था
सॉरी मैम, नेक्स्ट डी में जाना, वहाँ लिखा प्रोसीजर बिगिंस और समथिंग, 30-year Alex studies begin. Okay, he was afraid of humans. This is 30 years after Alex studies began. This is not at the beginning of study. Where is beginning of study? Okay. When Pepperberg began her dialogue with Alex. This is the beginning of study. ठीक है? Not given. हाँ, so answer इसमें कोई afraid of humans के साथ का कुछ है यहाँ पे? No. No, ma'am. So the answer should be Not given. not given. Not given. Okay. Then we come to Yes, the third question. Okay. Let's go to the third question. Previously, many scientists realized that animals possess the ability of thinking. Previously, many scientists realized, okay, that इसकी ट्रांसलेशन कर लो कि एनिमल्स में थिंकिंग की एबिलिटी है. पोजेस का क्या मतलब है? टू हैव, टू ओन समथिंग. ओके, पोजेस का मीनिंग. हाँ, प्रीवियसली व्हिच पैराग्राफ? बी पैराग्राफ स्टार्टिंग में लिखा है लैक ऑफ. कौन से पैराग्राफ में? मैम बी. बी मैम बी. Okay. Scientists believe animals were incapable of any thought. ये लिखा है. What is Yes, the meaning of ma'am. this? Incapable of any thought. उनके पास नहीं है कोई थिंकिंग की कैपेबिलिटी. False. We're lacking the ability to think or feel. Okay. तो क्या आंसर आएगा? False. False. Very good. The answer is false. Okay. See the next questions. It has taken a long time before people got to know cognition existed in animals. Existed होना चाहिए. It has taken a long time before people got to know cognition existed in animals. Which paragraph? They were It has taken a long time before people came to know cognition existed in animals. मैम सी पैरा की फर्स्ट लाइन से भी मेंटल एबिलिटी का शुरू हो रहा है. सी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से पर रिसर्चर्स को बहुत टाइम लगा ये जानने को कि कॉग्निशन एनिमल्स में है. ये पढ़ो बी की फर्स्ट लाइन. ओके. ए पैराग्राफ में है कहीं? नहीं. बी में देखो कहीं आंसर मिला आपको इसका? बी में तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे प्रूव करेंगे कैपेबल है या नहीं. स्टडी. मैम म्यूट कर दिए सबको, पीछे से आवाज आ रहा है. मैम लास्ट में जो है मोस्ट रिसर्चर थॉट पेपरगस इंटरस्पीसीज कम्युनिकेशन स्टडी वुड बी फ्यूटाइल. डी जो लास्ट में है. हाँ,
वो वो तो लाइन उन्होंने शुरू में देखा ना, उनको लग रहा था कि इसकी यूजलेस। स्टडी हाँ फ्यूटाइल होगी। हाँ ओके, उनको लगा कि इसकी स्टडी फर्टाइल होगी। ओके ओके मैम हाँ एफ में हाँ लास्ट लाइन में she added this never been to वो तो उसने बताया कि मेरा प्लान यही था। मैम कॉग्निशन वर्ड आया मैम। हाँ, इसमें आया कॉग्निशन वर्ड। तो F animals में had cognition. It took a long time for other people to say, to feel. मैम नॉट गिवन ही होना चाहिए, एज सच स्ट्रेट फॉरवर्डली तो कहीं नहीं दिया हुआ। The answer is yes. You have to find out. मैम सी में बिट बाय बिट तो नहीं होगा? सी की थर्ड लाइन। मैम यही है, बिट बाय बिट वाला ही आएगा अगली लाइन। इन ingenious experiments researchers have documented these talents in other species gradually लिखा हुआ है, chipping Gradually away। chipping away at what we thought made human beings distinctive while offering a glimpse of where our own abilities came from. तो ये उनको बहुत टाइम लगा, and ये इन्होंने बोला है bit by bit in ingenious experiments. So they took a long time. The answer is from here. The answer is true. And ये सारे examples दिए हैं कि उनको scrub jays को पता है that other jays are thieves, that stashed food can spoil, sheep can recognize faces, chimpanzees use a variety of tools to probe. इसको बहुत time लगा है. So all these are experiments की सब उन्होंने bit by bit in ingenious experiments, researchers ने ये सब talent species में ढूंढे हैं. So it took a long time. The answer is from here and it is true. ठीक है? Okay. As Alex could approximately imitate the sounds of English words, he was capable of roughly answering Irene's questions regarding the world. मैम ये ट्रू होगा क्योंकि वो 100 वर्ड्स वाली बात थी ना जो। हाँ, पर उसने वर्ल्ड के बारे में उसके आंसर्स को could he answer that? roughly No. मैम आंसर कर रहा था वो, एक जगह पे इसमें लिखा हुआ है कि वो ना Roughly वो answer, बताता है okay. वो कहता है कि कलर बता देता है कि जो शेप दिखाई गई थी उसको ग्रीन कलर था, और एक Yes. जगह वो कहते हैं कि क्या मैम ये यही है ना, yes, सी के पैराग्राफ में मैम। हाँ, yes, so the यही है जहाँ पे answer is true. ट्रू मैम। Yes. यस मैम। And sixth question, by ये भी breaking in other parrots as well as producing the incorrect answers, he tried to be focused. By Yes, ma'am. breaking in other parrots as well as producing the incorrect answers, he tried to be focused. ये लास्ट में है मैम बिल्कुल। Right. Just to be yes, ma'am. obstinate. हाँ, तो what should be the answer? He tried to be obstinate or focused? False. Abstinate. Yes. Wrong answer, just to be abstinate. Yes. He had to be, he wanted to be he was just being obstinate, not focused. वो obstinate हो रहा था, not focused. Okay? फॉल्स हो जाएगा मैम। हाँ? फॉल्स होगा मैम ये। हाँ, फिर false होएगा because exactly same दिया हुआ है, पर वो क्या होना चाहता था? Not focused but obstinate. Obstinate का क्या मतलब है? मैम जिद्दी। जिद्दी। Okay? जो जिद पकड़ के बैठ जाते हैं किसी चीज की, obstinate. ठीक है? ओके मैम। हाँ. Okay, question 7 to 10. Now we haven't done these type of questions before. Question 7 to 10, ये blanks हैं. And you have to see, after the training of Irene, parrot Alex can use his vocal tract to pronounce more than dash, while other scientists believe that animals haven't this advanced ability of thinking. They would rather teach dash. Okay. अब पहले क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लेना. No more than 3 words है. You can write up to 3 words. No more than 3 words का ये मतलब है नहीं है कि 3 आने चाहिए. 1 word भी आ सकता है आंसर, but it should not be 4 words. Okay? Yes. So after the training, parrot Alex can use his vocal tract to pronounce more than. आपको पता है अब इसका आंसर क्या है? 100 वर्ड्स वो 100 वर्ड्स वाला आएगा मैम। हाँ, 100 words. That is the answer. More than 100 100,
English 100 words words. or 100 English words. Okay. English word. Yes, हाँ, ma'am. and you have now three से ज्यादा नहीं लिखना आपने, ठीक है? Yes, Next ma'am. देखो, they would rather teach. यहाँ पे देखो, they would rather teach. वो इनको पैरेट को नहीं टीच करे. 100. They would rather teach. यहाँ पे देखो. You have this file with you. You find out what the scientist said कि parrot को सिखाने से better है कि किसको सिखाएं. They would rather teach. Chimpanzees कहाँ पे है word? Chimpanzees. Where Yes, is the ma'am. word in that context? कौन से पैरे में है? वो Chimpanzees use variety. मैम सी पैरे में है, लास्ट 4th लाइन है. वो तो चिंपैंजीज है, पर वहां कहाँ लिखा है कि दे वुड, जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि चिंपैंजीज को पढ़ाओ रादर देन टीचिंग. देखना पर 4th में जाना में नहीं है. In E paragraph, second line. हाँ. In E paragraph, Scientists second. thought that chimpanzees were better subjects. यहाँ पे आंसर है, उन्होंने सोचा कि chimpanzees better है, वो कहते थे they would rather teach who? Chimpanzees. So chimpanzees is the answer. ठीक है? ये समझ आ गया? Second जो 8th है वो blank, chimpanzees क्यों है? They would rather teach chimpanzees. ठीक है? Scientists believe that animals haven't this advanced ability of thinking. They would rather teach chimpanzees, while other scientists believe. ठीक है? Pepperberg clarified that she wanted to conduct a study concerning that, but not to teach him to talk. ये वहाँ जहाँ Cognitive something. यहाँ पे है. वो उन्होंने बोला, I'm not trying to see if Alex can learn a human language, she added. That's never been the point. My plan always was to use his imitative skills to get a better understanding of. Yes, ma'am. Avian Avian cognition. अब ये cognition word हमने बहुत essays में भी use करा हुआ है. You should know the meaning. Cognition brain की development से है, intelligence से related है. Okay? Cognition and language learning. Language essays में हमने ये word डाला हुआ है. Cognition and language learning go hand in hand. So you should know the meaning of this word. Such words you have to take out जिनके meaning आपको हर हालत में आने चाहिए, और अगर किसी रीडिंग में आएंगे तो आपको पहले आते होंगे, so you will be better placed. Okay? Avian क्या होता है? Avian is related to birds. Okay? Birds के साथ avian word related है. Understanding of avian cognition. Okay? तो यहाँ पे क्या आएगा? Study concerning avian cognition, but not to teach him to talk. The store's assistant picked out a bird at random for her for the sake of avoiding other scientists saying that the bird is dash afterwards. ठीक है? हाँ, ये भी वहाँ कहीं है. D मैम. D में? हाँ, second last. हाँ. Pepperberg bought Alex in a Chicago pet store where she let the store's assistant pick him out because she didn't want other scientists saying later afterwards का synonym that she'd particularly chosen an especially smart bird for her work. ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या आएगा? That the bird is, यहाँ पे क्या चाहिए? Smart. Afterwards. Yes. Yeah. That the bird is particularly chosen. मतलब afterwards ये ना कहें कि particularly chosen है, bird को specially उसने choose किया. The store's assistant picked out a bird at random for her for the sake of avoiding other scientists saying that the bird is, कि वो specially चुनी गई है. अब देखो दोबारा, particularly chosen. Particularly chosen I answer. हाँ? See? Yes. She's Particularly chosen and especially smart bird. लेटर उन्होंने लेटर स्मार्ट तो वो बोलेंगे ही क्योंकि वो स्मार्ट तो बर्ड थी, पर ये ना कहें कि स्पेशली चुनी गई है स्मार्ट बर्ड. बट मैम सेंटेंस को भी फ्रेम करना पड़ेगा ना कि अगर हेल्पिंग बर्ड आ रही है तो कॉमन सी बात है बर्ड भी आएगी.
एक मिनट, कहाँ पे? मैम जो आप बोल रहे हो ना, आई थिंक The store's assistant में picked out a bird हाँ, at random इसके बाद पर भी आई of avoiding other scientists, saying that the bird is particularly chosen afterwards. तो सेंटेंस में क्या क्या मिसिंग है? मैम वर्ब कहाँ मिसिंग है? इज है ना वर्ब। अच्छा 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 गॉट इट। ठीक है, इज पर्टिकुलरली चोजन। ठीक है मैम, क्वेश्चन का मीनिंग क्या बनता है मैम इसका? जैसे स्टोर के असिस्टेंट ने एक बर्ड रैंडमली पिकअप करके दी, उसने खुद नहीं जाके ली, उसने स्टोर के असिस्टेंट को बोलो कोई भी बर्ड मुझे दे दो, ताकि बाद में साइंटिस्ट ये ना बोले कि स्पेशली चुनी है इसने स्मार्ट बर्ड। ओके, मैं ये कह रही हूँ जो आफ्टर वर्ड्स लगाया है ना, इससे क्या इफेक्ट आ रहा है इस पे कि बर्ड लेटर ना के बोले ना, लेटर ऑन ये ओके चोजन है। देखो लेटर वर्ड था, मैंने आपको बोला था कि लेटर वर्ड है वो आफ्टर वर्ड्स का सिनोनिम है। ये देखो कहाँ पे था? ये रहा मैम, ये था, और थर्ड लाइन नीचे से मैम, saying later, yes ये रहा, saying afterwards, वो ये ना बोले afterwards that she particularly chosen. yes ma'am. Okay, then we go to the 11th, 12th and 13th question. What did Alex reply regarding the similarity of the subjects showed to him? एलेक्स को दो चीजें दिखाई गई थी सिमिलर, उसने उनके बारे में क्या रिप्लाई करा था रिगार्डिंग सिमिलैरिटी? उसको बोला क्या था? पैराग्राफ जी मैम, जी अपना फोर्थ लाइन। He held up two items. So two items उसने held up करी without hesitation, उसने बोला what same similarity। यहाँ पे आ गया आपका कीवर्ड similarity। एलेक्स ने क्या रिप्लाई करा? What same? Color. Okay, Alex replied it's color. ओके तो ये हो गया आपका कलर का। What is the problem of the young parrots except Alex? तो बाकी जो एलेक्स को छोड़ के जो बाकी के यंग पैरट्स थे उनकी क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पे आंसर प्रोनाउंसिएशन की थी मैम, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। हाँ, their problem was wrong pronunciation. Very good. Okay, they talked with wrong pronunciation. ये आपको मिल गया आंसर? यहाँ पे है H पैराग्राफ में ये। Yes ma'am. ठीक है, ये बाकी एलेक्स को छोड़ के बाकियों की ये प्रॉब्लम थी। To some extent, through the way he behaved, what we call him, जिस वे में उसने बिहेव करा उससे हम to some extent क्या उसको बुलाएंगे? मैम मूडी। मूडी मैम, he is moody. Moody उसका बिहेवियर है मैम। लास्ट लाइन इट इज गिवन ही इज मूडी एंड आई like teenager. He is like a teenager. Last line में तो उसको क्या टीनेजर। ओके मैम, ठीक है, यस मैम। ओके तो ये जो रीडिंग्स है ना, इनका जो सोर्स है मुझे जो मिली है ये रीडिंग्स में, वन रीडिंग वो थी जो इंद्रूप सर ने जब पेपर दिया था उनको आई थी। सो ही सेड मॉम दीज आर एक्चुअल एग्जाम रीडिंग्स, ये भी करवा दो स्टूडेंट्स को। ओके तो ये भी वन ऑफ द एग्जाम रीडिंग्स है। यू माइट सी इट, यू माइट नॉट सी इट इन द एग्जाम, बट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करे आज हमने, और ब्लैंक्स करी है आज, और ये शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करे हैं। नो मोर देन 3 words एंड और ए नंबर, इन चीजों को ध्यान देना है। तो टुडे आई विल पुट अप वॉल्यूम 1 की रीडिंग 1। You can all do it and discuss in your respective groups कि उसमें क्या क्या आंसर्स हैं। I'll put up the answers also. जो कोई नहीं समझ आए एक दूसरे को समझा देना, अगर कोई क्वेरी डाले उसको समझा देना। Will you do it? Yes ma'am. That's the actual exam reading, एक तरह से रिवाइज हो जाएगी। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी, बिकॉज उनमें भी कोई फ्लॉज हो सकते हैं, और वो रीडिंग्स रिपीट भी हुई हैं, पीछे हमने देखा बीच बीच में रिपीट हुई हैं। ठीक है, एंड ये एक्स्ट्रा आपको रीडिंग्स में रोज एक करा रही है। एक्चुअली आई डिड अनदर रीडिंग येस्टरडे, पर उस रीडिंग के आंसर्स बहुत ऊपर नीचे थे, एंड आई थॉट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच ऑन द वेरी सेकंड डे, सो आई हैव केप्ट इट फॉर टुमारो। एंड ये रीडिंग मैंने क्विकली देखी थी, दैट इज व्हाई देयर वर यू नो सम लैप्सेस इन माय टीचिंग इन दिस रीडिंग। सो आई विल बी डूइंग दैट रीडिंग विद यू टुमारो। ये 5-6 रीडिंग्स जो पैसेजेस मिले हैं, वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ दीज एंड one by one, and I'll try to search some others also, so that these are good teaching material. Any suggestions you have for the reading class? मैम हाँ बोलो। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। लास्ट जैसे आप बोल रहे हो कि जीटी को भी 3rd पैसेज आते हैं मैम, 13 क्वेश्चंस ही आते हैं।
लास्ट पैसेज में 13 ही उनके ना जीटी के एक्चुअली 5 पैसेजेस हैं। आपको पता है आजकल 5 पैसेजेस आ रहे हैं जीटी की रीडिंग में। मतलब No, ma'am, मेरे को नहीं पहला पता छोटा था। सा पैसेज होता है, उसमें से 6-7 क्वेश्चंस होते हैं। जिन्होंने Okay. जीटी का पेपर दिया अभी वो बताओ मुझे, isn't it like that only? Then there's another small passage, उसमें से 6-7 क्वेश्चंस होते हैं। Then there's third passage छोटा सा, उसमें से 6-7 क्वेश्चंस होते हैं। और फोर्थ पैसेज है, और फिर ये जो लास्ट पैसेज है ना, ये मेन बड़ा, इसमें से 13 क्वेश्चंस होते हैं। 13 मैम ये तो 14। मैम ये तो कैम्ब्रिज बुक्स में भी सेम फॉर्मेट ही दे रखा है कि फर्स्ट पैराग्राफ मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में 5-6 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं, फिर उसके हाँ, बाद आते हैं। तो हाँ। ये तो मैम नहीं, but 4-5 ये तो अभी उसमें भी दिया दे ना रखा है। कैम्ब्रिज में, जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था, कैम्ब्रिज की बुक्स जो पुरानी है ना 1 2 3, उनमें 3 पैसेजेस ही हैं लंबे लंबे। नहीं मैम 11, 12, 13 में मैम 5 ही हैं। 11, 12, 13 की बात कर रहे हो ना, मैं 1 2 3 की भी बात कर रही हूँ। पहले ऐसे होता था, अब 5 पैसेजेस आ रहे हैं, यही मैंने बोला। Yes, ma'am, 5 passages आ रहे हैं। अब 5 पैसेजेस आ रहे हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, नाउ देयर आर 5 पैसेजेस। तो जो 5th पैसेज है ना वो ऐसा है। Okay, ma'am. सिद्धांत, आप ये 11, 12, 13 में भी जो 5th पैसेज है जो मेन है वो ऐसा ही है ना? यस मैम वो ऐसा ही है। फर्स्ट उसमें आता है कि लाइक हेडिंग्स वाला, सर्च द हेडिंग्स एंड देन 3 आंसर फिल अप्स होते हैं उसमें, 3 या 4। हाँ, पर जरूरी नहीं होता हर एक में हेडिंग्स आए, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं उस पैसेज। कई बार ट्रू फॉल्स भी होते हैं। यस, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। एनी सच क्वेश्चंस कैन बी देयर इन दैट फाइनल Yes, ma'am, पैसेज yes, जो मेन है। तो जीटी वालों का वो वाला पैसेज सेम है। Okay, ma'am. ओके, और ये लेवल ma'am. ऑफ डिफिकल्टी है बिकॉज दीज आर पैसेज 1 ऑफ द एकेडमिक रीडिंग। ओके, Okay. these are passage 1. We can't use 100 in that जिसमें 3 words है। हाँ, ये मेरे को किसी ने अभी, मैं कॉल चैटिंग में देख रही हूँ, किसी ने बोला है कि उसमें 3 words है और उसमें 100 यूज किया हुआ है, मोर देन 100। ये यहाँ पे ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? Are you मैम talking about, मैम वर्ड्स लिख सकते हैं ना, 100 को वर्ड्स में लिख देंगे ना मैम। 100 को वर्ड्स में नहीं, लिख वो सकते हो, numbers भी वहाँ दिए ना हैं ना। and और a number लिखा होगा जरूर। Yes, ma'am. See, these questions have been reproduced by students with very, very great memory बाहर आके। Okay? As such question paper तो बाहर आ नहीं सकता, you know that. ठीक है? So ये questions का कोई form यहाँ पे and और a number है, ये मैं इनको minor flaws मानती हूँ। ये हो सकता है, वहाँ पे 100 आंसर है। 100 अगर वर्ड्स नहीं हो, वर्ड्स का तो नंबर्स का नहीं ऑप्शन हो, तो 100 को HUNDRED लिख देना। इज दैट क्लियर? यस मैम। हाँ, और कोई सजेशन, एनीथिंग एल्स? इसकी वोकैबुलरी थोड़ी सी देख लो, कौन कौन से वर्ड्स करने वाले हैं इस पैसेज में से। एक वर्ड आपने सीखा, कॉग्निशन। ओके, ऑब्स्टिनेट। हाँ, ऑब्स्टिनेट मैम। हाँ, ऑब्स्टिनेट, ठीक है। ये देखो, ऑटोमेटॉन्स क्या होते हैं? ऑटोमेटॉन्स, इसको कर लो अपना, हाईलाइट कर लो या इसको कर लो। ऑटोमेटॉन्स क्या होते हैं? Automaton is a person who behaves like a machine without thinking or feeling anything. ठीक है, रोबोट्स को ऑटोमेटॉन्स कहते हैं। तो पहले क्या सोचा जाता था? एनिमल्स वर कंसिडर्ड ऑटोमेटॉन्स। ठीक है, तो लाइक रोबोट्स विदाउट हैविंग फीलिंग्स। ओके, तो ये है ऑटोमेटॉन्स, वन वर्ड। अनदर देखो, इसमें फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट पैरे में कोई वर्ड है जिसका आपको मीनिंग नहीं आता? We still have time. वोकैबुलरी ढूंढनी बहुत जरूरी है, जो आपने सीखी है। कंट्रोवर्शियल का क्या मतलब है? मैम डिबेटेबल इशू। हाँ, डिबेटेबल, Stimuli in third line. हाँ, React to stimuli. कौन सा वर्ड? Stimuli, ma'am. React to in third line. तो ये स्टिमुलस को रिएक्ट करता है। स्टिमुलाई होते हैं। स्टिमुलस होता है सिंगल, जिसको जैसे किसी को स्टिमुलस देना, किसी को छेड़ना या कुछ करना। स्टिमुलस, स्टिमुलाई उसका प्लूरल है। स्टिमुलस
Stimulus means Encourage something that someone. helps somebody to develop better. Stimulus होता है एक एक पुश देनी किसी को. एक मिनट में शेयर करती हूँ आपसे. ये देखो, स्टिमुलस मीन्स, स्टिमुलाई उसका प्लूरल है, प्लूरल स्टिमुलाई है. ओके, एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग ब्लॉक हो गई है. Yes. Yeah, new share. Where is my quit? Okay, reopen. Okay, stimulus. Stimulus is something that helps somebody to develop better or more quickly. कुछ पीछे से कुछ जैसे पुश देनी किसी को, उसको कहते हैं स्टिमुलस. और स्टिमुलाई, स्टिमुलस का प्लूरल है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वर्ड बताओ. स्टिमुलाई हो गया, स्टिमुलस का प्लूरल. What is the meaning of fanciful? फैंसीफुल, जो किसी को जैसे फैंसीफुल कहाँ वर्ड, पहले ये बता दो, मैं हाईलाइट. Last में मैम, last line. हाँ, फैंसीफुल मींस जिसको सोच के कोई हैरानी ना हो, फैंसी ना आए, मतलब कुछ, मतलब इट्स नॉट फैंसीफुल मींस Not attractive. हाँ, नॉट, जैसे Normal. not fanciful means based on imagination. It's not based on Dreamy type. ये मैंने शेयर करी है डिक्शनरी, you can see the meaning. Based on imagination. Fanciful, not fanciful is not based on imagination. अब उसका proof मिल गया है. Okay? ठीक है? Okay. Next word देखो, fanciful हो गया. Any other word that you've learned in this? Thieves. बताओ कोई word. Don't hesitate. Bring out the words. ग्रामर के स्पेलिंग देख लो, ये लिसनिंग में काम मैम आते हैं. ingenious. मैम Ingenious. Ingenious. Ingenious means जो which involve intelligence. Okay? Ingenious. Very suitable for a particular purpose and resulting from clever new ideas. Ingenious device, clever. Okay? Ingenious. Ingenious way means intelligent, clever way of saving energy. His plots are always ingenious. Okay? Next word बताओ. मैम एक होता नहीं लाइन की which suits their fancy, इसका मतलब क्या होता है? जो उनकी imagination को suit करे. Okay. Fanciful, not based on, no longer fanciful is based on imagination. Or fancy. Thieves. Other J's are thieves. Word कौन सा बोला? Thieves में. Thieves, thieves चोर. Plural of चोर, thieves. वो पता है, ये स्क्रब जेज एक तरह के बर्ड्स हैं. उनको पता है कि जो बाकी तरह के बर्ड्स हैं वो चोर हैं, कि वो चोर है, उनको ये पता है. फिर स्टैश्ड फूड, जो जिस फूड को हम स्टैश करते हैं, स्टोर करते हैं, वो खराब हो सकता है. ठीक है? Stashed means store. Ma'am, what is the meaning of termite? टर्माइट तो स्योंक को कहते हैं. टर्माइट. और टर्माइट माउंट्स पता है, जो स्योंक के माउंट्स हैं बड़े बड़े. आपने कभी टर्माइट माउंट्स देखे हैं? पहाड़ जितने बड़े हो जाते हैं. मैम प्रोब. प्रोब होता है किसी चीज को प्रोब करना, मींस उसको उसके अंदर लुक इनटू करना, उसको जांचना. प्रोब इनटू कहाँ पे है वर्ड प्रोब? मैम जस्ट टर्माइट से पहले. टूल्स टू प्रोब. देखो, टर्माइट की माउंट को प्रोब करना मींस उसके अंदर चोंच डालनी. ओके ओके. मींस उसको प्रोब करना मींस उसके अंदर देखना, झांकना. छेड़ना. छेड़ना. छेड़ना मैम. एक तरह से मैं शेयर करती हूँ डिक्शनरी एंड वील. प्रोब. प्रोब ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट को भी कहते हैं, पर यहाँ पे प्रोब एज ए वर्ब यूज्ड है, तो वील सी द मीनिंग ऑफ प्रोब एज ए वर्ब. प्रोब एज ए वर्ब का मीनिंग है टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन. इन्वेस्टिगेट. प्रोब इज इन्वेस्टिगेट, अंदर, माउंट के अंदर प्रोब करना. ठीक है? Ma'am, what is the meaning of termite? termite means destroy. Destroy means to 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 destro
करेक्ट मैम, ओके। करेक्ट, समझ आ गया? जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करनी। ओके ओके, प्रोब भी हो गया। और बताओ, स्क्वर्ट, SQUIRT. Ma'am, what's the meaning of cognition, ma'am? Cognition is related to intelligence, brain, development of brain. We use this word very often in the language essays. Language and cognitive abilities go hand in hand. जो बच्चे multilingual होते हैं ना, उनके वो ज़्यादा intelligent होते हैं. That is why, you know, Indian students do much better when they go to US and Canada, because those people are multilingual होते हैं, जिनको एक ही language आती है, English. और हम लोगों को कितनी languages आती हैं? We know English, Hindi एंड पंजाबी और एनी अदर मदर टंग, जैसे जो साउथ के उनको मलयालम आएगी या तेलुगु आएगी, तमिल आएगी, तो हमें 3 लैंग्वेजेस आती हैं, तो मल्टीलिंगुअल होने का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, स्क्वर्ट का क्या मतलब है? देखो पहले तो आप इसका इमेजिन करो, यहाँ के हिसाब से क्या मतलब है। अपने मुंह से जब कुरूली करते हो तो जोर से अपने मुंह से पानी बाहर फेंकते हो ना, टू फोर्स लिक्विड इन ए थिन फास्ट स्ट्रीम थ्रू ए नैरो ओपनिंग, उसको स्क्वर्ट कहते हैं। ठीक है, एंड अब यहाँ वहां से अब देखना, इसका आप मीनिंग इमेजिन कर सकते हो पैसेज से। अब देखो यहाँ पे, द आर्चर फिश विच स्टन्स इंसेक्ट्स विद ए सडन ब्लास्ट ऑफ वाटर कैन लर्न हाउ टू एम इट्स स्क्वर्ट सिंपली बाय वॉचिंग एन एक्सपीरियंस्ड फिश। तो वो इंसेक्ट्स को स्टन करती है। स्टन का पता है आपको क्या मतलब है? स्टन्स, एकदम से ना ब्रेन डेड कर देना, जोर से ब्रेन पे मारना, वो स्टन हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इसको कहते हैं। ये मैं जब मेडिकल कॉलेज में थी तो हमें ना फ्रॉग्स पे एक्सपेरिमेंट करने होते थे। तो सबसे पहला काम था एक फ्रॉग को उठाना, हाथ से पकड़ते थे फ्रॉग को, और उसके ना सिर के ऊपर जोर से एक मेटल मारते थे टन करके, और वो फ्रॉग जो था ना वो बेहोश हो जाता था। फिर उसके मसल पे एक्सपेरिमेंट करते, उसको स्टनिंग कहते हैं। तो ये इंसेक्ट्स को स्टन करती है आर्चर फिश। इंसेक्ट्स उड़ रहे होते हैं ना, कैसे स्टन करती है? सडन ब्लास्ट ऑफ वाटर से, एकदम तेज पानी उसके ऊपर फेंकती है। तो उसने कहाँ से सीखा? टू एम इट स्क्वर्ट। अब स्क्वर्ट का मीनिंग आपको पता चल गया। स्क्वर्ट क्या है? जो वो जोर से पानी का जो धार बनाती है मुंह से। ठीक है, सिंपली बाय वॉचिंग एन एक्सपीरियंस्ड फिश परफॉर्म द टास्क। ठीक है, तो ये स्क्वर्ट का मीनिंग भी आ गया, स्टन का मीनिंग भी आ गया। एनी अदर वर्ड? इमिटेट का मतलब पता है ना? इमिटेट का मतलब रीस करनी, टू इमिटेट। मीनिंग ऑफ ग्लिम्स, मैम कॉपिंग, नकल करना, कॉपी करना। हाँ कॉपी। बताओ इसका मीनिंग। मैम ग्लिम्स इन द सी पैराग्राफ इन ग्लिम्स, ओके ग्लिम्स, झलक, ग्लिम्स एक नजर। लिखा है ग्लिम्स, कहाँ पे है वर्ड? मैम इन द सी पैराग्राफ इन द 5th लाइन, ऑफरिंग अ ग्लिम्स ऑफ झांकी, एक नजर। ठीक है, ऑफरिंग ए ग्लिम्स ऑफ वेयर आवर एबिलिटीज केम फ्रॉम। ग्लिम्स इज जस्ट एक नजर पढ़ना। ठीक है, ओके। डी पैराग्राफ में देखो, कोई वर्ड्स हैं आपको? क्रेव इज यर्न करना, बहुत तीव्रता से उसको किसी, कल हमने यर्न वर्ड करा था ना, यर्न, YEARN, इसका भी सेम मीनिंग है। क्रेव और यर्न, स्ट्रॉन्ग डिजायर, यर्न का सेम मीनिंग है, क्रेव। ओके, यहाँ पे यर्न भी आ सकता है। हफी का क्या मीनिंग है? हफी मीनिंग Huffy, in a bad mood, especially somebody has annoyed or upset you. Huffy is like in a bad mood. देखो उसने कहा ना, Alex dominated his fellow parrots, acted huffy at times. ठीक है, huffy means bad mood में है, जैसे tolerated, तो huffy का in a bad mood हो गया। और बताओ कोई word जिसका meaning नहीं आता आपको? Tell me. Interspecies, ma'am. कहाँ पे है? Which line? In the last line. Interspecies means within the species. Interspecies. Interstate competition क्या होता है? जो within the states competition होता है। International competition क्या होता है? जो within the nations competition होता है।
Okay, ऐसे Okay, the species is within the species communication, within the species. मैम Okay, फ्यूटाइल यूजलेस ही होता है ना? futile is useless. Very good. ये word Okay. बहुत आता है readings में. Futile. Shelled, ma'am, shelled. हाँ? Shelled. Size of a. Shelled walnut. Shelled होता है. Shell क्या होता है? किसी चीज का shell is उसका cover बाहर का. Shelled walnut means बंद walnut जो shell के अंदर है. उतने size का brain है Alex का. Okay? Shelled walnut के size. Walnut क्या होता है? अखरोट. Walnut is अखरोट. एक shelled walnut का size. ठीक है? Any other word? आप बताओ चलो ई पैराग्राफ में बताओ कोई वर्ड जो आपने आज सीखा है. What is crazy? पागल. पागल. ठीक है. Excited. No. Crazy means insane, not in the sense crazy. Mad. Yes. Any other word? Mad. Huh? Okay. Any other word? मैम पेशेंस. Patience. Patience. नहीं होता मैम है नेक्स्ट लिखे उस पेशेंस से. कहाँ पे है? Which line? ट्यूटेलैग ऐसे कोई वर्ड लिखा है. TUTELAG. ट्यूटिलेज. इसके ऊपर हाँ ट्यूटेलेज होती है उसके अंदर जैसे कोई ट्यूटर होता है ना, ट्यूटर जो करता है उससे ट्यूटिलेज वर्ड बना है. ट्यूटिलेज इज tutelage is under the teaching and instruction that one person to another. Synonym tuition है. Tuition का synonym. अब tuition के spellings भी देख लो. ट्यूशन के स्पेलिंग देख लो. ट्यूशन है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सुन लो. ये tutelage है. ट्यूशन की प्रोनाउंसिएशन ट्यूशन. और ये TUITIO है ना, लिसनिंग का वर्ड है. यू हैव टू नो द स्पेलिंग्स. ओके नेक्स्ट वर्ड बताओ. ट्यूटिलेज भी हो गया. ट्यूटिलेज कहाँ? बैनरी मैम. हाँ बैनरी. बैनरी ये तो उसने ना पैरेट ने वर्ड बनाया. पता है क्या? वो सेब को बैनरी बोलता था. क्यों? क्योंकि उसको ना उसका टेस्ट बनाना जैसा लगता था. ओके एंड लुक उसको कैसी लगती थी? चेरी जैसी. तो उसने बनाना से बै उठा लिया और चेरी से एरी उठा लिया. बैन और एरी. बैनरी बोलता था एप्पल को. ठीक है. ओके. तो ये कोई वर्ड नहीं है, ये तो उसने बनाया था वर्ड. जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर ने बनाया वर्ड. मेरे को कहती है, उसने बोलना था कम क्लोजर. तो पास आना कहते हैं ना हिंदी में. मुझे कहती है कम पासर. मैं कहा अच्छा. उसका मीनिंग नहीं होता ऐसे वर्ड्स का. ओके बैनरी. ओके नेक्स्ट बताओ कोई और वर्ड. कॉग्निशन मैंने बता दिया आपको. मैं डिक्शनरी में दिखा देती हूँ. कॉग्निशन वर्ड बहुत एसेज में भी यूज्ड है. कॉग्निशन इज प्रोसेस by which knowledge and understanding is developed in the mind. ठीक है? Human cognition and language learning go hand in hand. This is the term which are used in the essays. ये sentence use करा हुआ essays में. Okay? Approximation. Approximately हम use करते हैं ना? Yes ma'am. It's about near to about. Approximation means to estimate of a number or an amount that is almost correct, not exact. ठीक है? That is approximation. Any other word? Hesitation क्या होती है? घबराहट. नहीं, not घबराहट. It's like ma'am, if I am शर्म करना मैम. if the students are not asking any question, that is झिझक. Hesitation. Shy. झिझकना. झिझक. Okay? Shy feel करना. हाँ shy has झिझकना. किसी चीज को करने से झिझक जाना. Ventriloquist क्या होता है? Ventriloquist.
आपने कभी वो देखा है शो जिसमें एक आदमी अपने हाथ में एक उसके हाथ में एक वो होता है बड़ा सा डॉल टाइप चीज, उसके अंदर हाथ डाल के उसको बुलवाता है कोई चीज, ऐसे लगता है वो बोल रहा है, उसकी बाजू उसके Yes, अंदर ma'am. होती है। तो वो जो Yes, ma'am. वेंट्रिलोक्विस्ट होते हैं ना, वो अपनी आवाज ऐसे डाल सकते हैं कि कहीं दूर से आ रही है, वो दूसरी चीज से आ रही है, ऐसे लगता है कि आवाज ही दूसरी चीज से आ रही है। दे कैन थ्रो देयर साउंड, उनको वेंट्रिलोक्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, वेंट्रिलोक्विस्ट में आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। अभी आप कोई शो देखोगे जिसमें कोई वेंट्रिलोक्विस्ट आए, एन एंटरटेनर हु कैन स्पीक विदाउट मूविंग देयर लिप्स एंड मेक इट लुक एज इफ देयर वॉइस इज कमिंग फ्रॉम ए पपेट और अनदर पर्सन। ऐसे लगता है उनका मुंह भी नहीं हिल रहा होता और ऐसे लगता है उनकी आवाज दूसरे पर्सन से आ रही है। ठीक है, उनको वेंट्रिलोक्विस्ट कहते हैं। और कोई वर्ड एच पैरा में देखो, any word that you found difficult? मैम ह्यू का मीनिंग कलर्स होता है ना? कहाँ पे है word? थर्ड लाइन, थर्ड लाइन मिक्स्ड ह्यू। ह्यूज होते हैं कलर्स के शेड्स, शेड्स को कहते हैं। ओके ओके मैम, ओके मैम। मैम एक होता है ह्यू एंड क्राई, वो क्या होता है मैम? का इडियम है, उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा वो जैसे किसी चीज को ओवर रिएक्ट करके उसके बारे में बहुत वो शोर शराबा कर दिया बिना बात का। ह्यू एंड क्राई। Elect, ma'am. Don't be smart, elect. स्मार्ट एलेक, स्मार्ट एलेक तो एक वो इडियोमैटिक मैम ह्यूज का, हाँ, ह्यू मींस शेड, कलर का शेड, ह्यू। ओके, स्मार्ट एलेक का देखो डिक्शनरी में है। स्मार्ट एलेक दिया हुआ है ना, स्मार्ट एलेक। स्मार्ट एलेक मींस a person who thinks they are very clever and likes to show people this in an annoying way। कोई अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा है और दूसरे लोगों को बड़े, वो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा ये बात, और दूसरे लोगों को बड़े अनोइंग वे में ये बात बताता है कि मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, उसको स्मार्ट एलेक, स्मार्ट जैसा, ओवर स्मार्ट। ठीक है, डोंट बी अ स्मार्ट एलेक, टॉक क्लियरली, डोंट बी अ स्मार्ट एलेक, पेपरबर्ग सेड। ठीक है, ओके। ऑब्स्टिनेट मैम, ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, हमने करा था ये वर्ड, स्टबर्न, जिद्दी। हाँ, ऑब्स्टिनेट, जी मैम, जिद्दी, जिद्दी स्टबर्न भी होता है, ऑब्स्टिनेट भी होता है, ये भी जिद्दी है, और स्टबर्न भी जिद्दी है। और ऑब्स्टिनेट इज रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन, वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, व्हेन अदर पीपल ट्राई टू परस्यू यू, ये स्टबर्न है, स्टबर्न भी जिद्दी है और ऑब्स्टिनेट भी जिद्दी है। और ये वाला वर्ड ना आप अपने फ्रेंड के क्यू कार्ड में बोल सकते हो, ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट या ही इज वेरी स्टबर्न एट टाइम्स। अगर आपको ऐसा आ जाए ना कि डू यू व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट हिम, व्हाट इज द वन थिंग यू डोंट लाइक इन योर फ्रेंड, ही इज वेरी स्टबर्न। किसी चीज पर अड़ जाता है तो अड़ ही जाता है। ठीक है, सो लाइक दैट यू कैन से। ठीक है, ओके मैम, यू कैन यूज दिस वर्ड ऑब्स्टिनेट एंड स्टबर्न। मीन्स स्टिक ऑन ओपिनियन मैम। पार्डन? हाँ, अपने ओपिनियन पे मतलब अड़ जाता है, अड़ब, दैट्स ऑब्स्टिनेट। स्टिक ऑन देयर ओपिनियन। पार्डन? मैम शी इज सेइंग स्टिक ऑन द The ओपिनियन। person who stick on their opinion. हाँ, who sticks on his opinion ना, ऑब्स्टिनेट हो गया ना, मतलब चाहे ओपिनियन गलत है बट ही स्टिकिंग ऑन इट। इंटरप्ट का क्या मतलब होता है? किसी को बीच में इंटरप्ट करना, रोकना, डिस्टर्ब, कट इन समवन, रोक देना किसी चीज। मैम, हाँ, मैम स्टिक ऑन ओपिनियन होता है कि स्टिक टू ओपिनियन होता है? sticks, one who sticks to his opinion, on his opinion, दोनों ठीक है। ओके मैम। ठीक है मैम। यस मैम, आपका ना एक क्यू कार्ड है बुक में जो लेटेस्ट आई है। हाँ, मैम उसका इमेजिनेशन, डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू यूज्ड योर इमेजिनेशन। हाँ, मैम कुछ सोखा सा बता दो। वो डिफिकल्ट लगा आपको? मैम मेरे को मतलब पहले देखने पे इमेजिनेशन कहाँ यूज कर सकते हैं हम? हर जगह इमेजिनेशन कहाँ नहीं यूज कर सकते हो, मुझे ये बताओ। In the cue cards also, ma'am, we are using बोलो, imagination. sir, while I'm talking to you, I'm using my imagination to make this cue card. And you can make it sound hilarious. See, it's all imagination. Sorry, stories, everything, all the cue cards, everything is your imagination. Okay.
Imagination, Canada, your imagination for anything and everything. कनाडा की ड्रीम को इमेजिन करके एक्सप्लेन कर दो है किसका? मैम कनाडा के ड्रीम को हाँ, see, we I'm will do imagining, sir. I'm imagining you have yeah. given me very good band. I'm in Canada. You Ma'am, can if we are imagine. yes, ma'am, if we are telling a story to any of the children, then any of the child, then we are doing the imagination at the time also. Yes, see, once my cousins, once my nephew and niece had come to my place, Steffi. तो आप बोल सकते हो once my nephew and niece had come to my place and they wanted me to tell them a story. So I started a story of a king and a queen and a princess, and then I used my imagination to make that story, and I made a wonderful story in which I made that princess very stubborn and obstinate, and she never listened to her parents, and then they told her not to go out of the house, and she went out of the house and she got lost. Okay, that stubborn. So I imagined the story of a stubborn, obstinate princess. मैंने अभी obstinate और stubborn word डाल दिया, who never obeyed her parents, and then she suffered a lot. Okay, तो ऐसे. ओके मैम. मैम एक बात और मैम, जैसे क्यू कार्ड को उन्होंने बोला कि डिस्क्राइब ए क्यू कार्ड, जैसे कोई पास्ट का क्यू कार्ड था. हाँ. तो मैम क्यू कार्ड को तो सारा हमने पास्ट में एक्सप्लेन कर दिया. फिर उसके बाद कोई क्लोजिंग लाइन लगानी जरूरी है, जैसे सो आई हैव एक्सप्लेन्ड या आई. जरूरी नहीं है, पर अगर आप, क्योंकि 90% of the times if you have answered all the cues, you will not be made to speak a full 2 minutes. Believe me. Okay. And so the closing line will hold no value. And supposing your whole cue card is up and you want to put the closing line and the examiner hasn't stopped you yet, that means that it's not yet. But one thing that I'll guide you is that answer all the cues. Otherwise, your cue card will not be considered complete. Okay, ma'am. Answer those in first 30, 40, 50 seconds. Then your imagination will... live चली अंदा. हाय मम्मी तू भी आज पढ़ा. Okay, so that is how you use. And today we've done a lot of words. Okay, you can make a note of all these words. I've given you the file in the morning, and you've used these. We've done the answers now. और पहला क्वेश्चन का भी आंसर समझ हो गया ना, क्यों नॉट गिवन है, कि ग्रास्प नहीं है, उसने इमिटेट करी है. ग्रास्प करी है कि नहीं इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, नहीं बताया हुआ. सो इट इज नॉट गिवन. ओके, यस. और तो कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं था? एक्सक्यूज मी मैम. यस. जो लास्ट वाला टीनेजर है वो अकल टीनेजर लिखना है, अ टीनेजर. To some extent, through the way he behaved, what we call him, a teenager भी correct है, अकेला teenager भी correct है. दोनों correct. Thank you. ठीक है. अगर one word ही हो फिर तो teenager ही आना है. अगर 3 words तक दिया है तो a teenager भी. अच्छा, remember, never ever put a bracket over there. गलत हो जाएगी. Okay? आपका जो आंसर है वही लिखना. हम अगर ब्रैकेट डालते हैं आंसर में, it means that with the A is also correct and without the A is also correct for you to correct your answers, but never use bracket in your answers in the exam. And answer all the answers in the uppercase. Okay, uppercase, all capitals. ठीक है? Okay. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, what is the meaning of frightened? Which word? Frightened. Frightened. डर गया. कहाँ पे है? मैम ट्रू फॉल्स में. True false में. हाँ. Frightened, afraid. Frightened means afraid. Afraid का मतलब पता है? डरा हुआ. देखो ये when you have asked me this question, this has suddenly I have realized that we must do the vocabulary from the questions also, because questions में वो synonyms होंगे ना अंदर वाले words के. Yes, afraid है. ठीक है? Ma'am, it is necessary to write in capitals only. It is advisable to write in capitals only, not necessary. Ma'am, in all the fill-ups and all. Yes, all capitals. Believe me, that mistake of using capitalization error, that will go. Okay?
ओके मैम। हाँ 99 बैंड है मेरे बहुत बच्चों के, इवन इंद्रुप सर बट has got 99 always बट in मैम capital he is स्पीड written. नहीं आ पा मैम हाँ? स्पीड नहीं आ पाती अगर कैपिटल में लिखें तो। अरे कैपिटल आपको रीडिंग और लिसनिंग के आंसर्स की बात कर रही हूँ, राइटिंग एसे और ग्राफ की बात मैम नहीं ये कर रही हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि मैम स्पीड नहीं आ पाती फिर उतनी। अरे रीडिंग लिसनिंग के आंसर्स वन वर्ड है, कैपिटल्स में लिख के आना, डोंट डू द मिस्टेक ऑफ राइटिंग इन लोअर केस. ओके मैम ओके। Okay, I'm telling Ma'am, we you, get this is extra going to 10 benefit minutes. you. Supposing the answer is Sunday और आपने S छोटा लिख दिया, you will get a 0 for that. यस मैम ये तो है। हाँ तो सारे कैपिटल्स लिख दो, इतनी क्या स्पीड की जरूरत है, 40 वर्ड्स अगर आपको टोटल लिखने हैं, हार्डली मैटर्स, साथ साथ आंसर करो, कैपिटल ओके की प्रैक्टिस करो घर में भी. Okay? मैम जैसे रीजनिंग में ना क्वेश्चन आता है तो उसमें जैसे तो मतलब ये आंसर दे रखा है पीछे और आगे ना दा लिखा हुआ है तो वो ब्रैकेट में है तो वो लिखना होता है जैसे. देखो द अगर हम ब्रैकेट में लिखते हैं उसका मतलब है कि अगर आपने द जापानीज लिख दिया तो भी करेक्ट है, अकेला जापानीज लिख दिया तो भी करेक्ट है, पर आपने वहां ब्रैकेट नहीं डालनी, आपका जो भी आंसर है आपने वही लिखना है. अगर उन्होंने मैंने जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था सुबह जैसे लिसनिंग में तो मैंने वहां पे लास्ट प्लांट्स लिखा था पर उन्होंने ब्रैकेट में दा डाल रखा था और बाकी लास्ट ब्रैकेट प्लांट्स का तो मेरा मतलब है ठीक कि था वो. द के साथ लिखो तो भी करेक्ट है, द के बिना लिखो तो भी करेक्ट है, आपने ब्रैकेट नहीं डालनी है. ठीक है समझ गए? हाँ जी. आपने ब्रैकेट नहीं डालनी है. हमारे आंसर शीट में ब्रैकेट इसलिए है कि हमें बच्चों को ये बताना है कि अगर आपने द के साथ लिखा है तो भी करेक्ट है, द के बिना लिखा है तो भी आपका करेक्ट है. ओके मैम. ओके मैम हाँ मैम अगर आपके पास थोड़ी कैम्ब्रिज की जीटी की रीडिंग्स हैं तो आप शेयर कर दोगे? कैम्ब्रिज की जीटी की रीडिंग्स मैं 1 a डे शेयर कर देती हूँ आपसे, ठीक है? ओके मैम. आप उसको उस पे एकेडमिक का प्रैक्टिस भी करो. रीडिंग कर हाँ? दीजिए मैम। Pardon? एकेडमिक का रीडिंग एकेडमिक ग्रुप में एक रोज की शेयर कर रही हूँ 1 आवर करने के लिए, अभी कर देती हूँ अभी. ठीक है? ठीक है मैम. ठीक है मैम रीडिंग्स रिपीट होती है? करूंगी रीडिंग 1 से और डेली एक पैसेज ऐसे डिस्कस करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ 10 मिनट ब्रेक. मैम ब्रेक के बाद मैंने ग्राफ कराने. कौन सी ग्राफ करने हैं आज? मैम रीडिंग्स रिपीट होती हैं? बिल्कुल होती है. किरण आप एकेडमिक स्टूडेंट हो गए जनरल? जनरल मैम. जनरल की मेरे पास कोई पास्ट एग्जाम रीडिंग नहीं है, नॉट ए सिंगल. ओके ओके. अच्छा मैम मुझे एक क्वेरी थी. जो केम्ब्रिज की रीडिंग्स है ना, केम्ब्रिज पीपल ही पेपर सेटर है, उन्होंने अपनी बुक्स में अपनी पास्ट रीडिंग्स डाली हैं. उसका मतलब है कि अगर आप केम्ब्रिज की रीडिंग पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एग्जाम लेवल की डिफिकल्टी पे प्रैक्टिस कर रहे हो. हाँ मैं उसी से कर रही हूँ मैम. तो जो उनकी बुक्स है ना मैं केम्ब्रिज 1 से स्टार्ट करूंगी आज शेयर करना. केम्ब्रिज 1 रीडिंग 1. ओके ओके परफेक्ट. ओके मैम. केम्ब्रिज की रीडिंग्स है बट डू देम. ओके ओके मैम. मैम मैं आपकी वाली जनरल रीडिंग कर रही हूँ, आपकी बुक वाली ना लेटेस्ट. हाँ वो कर लो. ठीक है ठीक है. मैम मेरी क्वेरी थी. हाँ जी मैम जब हम कैपिटल में लिखते हैं आए ऐसे लिखेंगे और ऐसे? जो आपने ये जो पहले वाला आई लिखा है ना ऐसे, वो टी की तरह माना जाएगा कंप्यूटर से, तो गलत हो जाता है. ओके जब हम ऐसे बड़े एम क्यों करने हैं लिखेंगे? आपने? छोटे कर दो. नहीं मींस एम ऐसे लिखेंगे जहाँ ऐसे जब हम वो जो सेकंड कैपिटल में. लिखा है वैसे लिखो. ओके मैम. वैसे लिखो. अच्छा ओके मैम. ये मेरी एक स्टूडेंट के ना 6 आए, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू आए कैसे लिखती है? उसने मेरे को ऐसे पहले जैसे, मैंने कहा ये गलती है मेरे ख्याल में, वो कंप्यूटर कई बार चेक करता है उसको टी पढ़ लेता है, तो आप ना सिंपल आई लिखो सीधा. ठीक है? ओके मैम. डोंट पुट दैट ओके ऊपर नीचे. थैंक यू. एनीथिंग एल्स? मैम दोबारा से बताना कैसे है. मैम यस मैं भी ये बोलने लगी थी, दोबारा से बता दो. जिसने पूछा था उनको बोलो दोबारा से ड्रॉ करें. मैम कर देती हूँ मैं ड्रॉ. करो. एम हाँ. और Ma'am, what you told about reading Cambridge practice, I didn't get the Hindi. And I said that Cambridge people are the paper setters. I have no past exam readings of general training, but Okay. I will share the Cambridge past readings with you one per day, and you practice on them. That will be exam तो practice. कौन से वाला सही है मैम इसमें? जो उसने नीचे बाद वाला में जो लिखा सही था, है? जो बाद में लिखा. ओके मैम वो वाला ठीक है. हाँ क्योंकि आई के ऊपर जब ऊपर और नीचे ऐसे लाइन डाल देते हो ना, वो टी जैसा लगता है, एटीएम लग रहा है वो. यस मैम. तो ओके मैम. एटीएम
ये सेकंड इज करेक्ट. तो फिर मैम ट्रू फॉल्स में तो ओके टी तो लग गया. ठीक है टी तो टी है. ठीक है ओके. मैम रेज कर दूं? हाँ कर दो. चलो अब मैं मीटिंग और अच्छा कौन सा ग्राफ करना है एकेडमिक स्टूडेंट्स? लाइन ग्राफ मैम. मैम ओके मैम लाइन करा दो. ठीक है कराती हूँ. ओके आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ. 10 minutes break. We'll rejoin with the same link. Okay, ma'am.